and trustee of Kishan Chand Foundation Trust, located opposite Hyderabad Apollo Hospital. It is unfortunate that state of Telangana does not believe in following law of the land. Everyone knows that that a mere entry in town survey land record can never be construed to be a document of title as confirmed by Honorable Supreme Court. As against such a solitary entry in TSLR, Kishan Chand Foundation Trust and their lessees who have been running MA Garden Function Hall in premises bearing number 3-6-292 Hyderabad have traced their title to the subject land under registered sale deeds executed commencing from 2nd February 1353 firstly, document number 817 of 1353 firstly, followed by registered sale deed dated 13 Aban 1354 firstly, being document number 2625 of document number 2183 of 1968 and 2184 of 1968. The purchasers thereunder constituted a charitable trust under registered trust deed dated 10/3/1969, document number 969 of 1969. The trust management is evidenced by the registered document. The function hall and the last registered sale deeds are 15/6/2022 under document number 1760/2022 and 1761/2022. Two registered lease deeds dated 15/6/2022. The lessees have been running the function hall by obtaining trade license permission from the Labour Department and other concerned departments legally. Though the trust and their lessees have been in such settled possession of the property, the Mandal Revenue Officer Himayat One second. Government revenue authorities. On 11 line, what is 25 revenue officials forcibly dispossessed us of the trust land and affixed board stating that it is government land and fixed locks to it. And who are those? Where RDO and MRO. Which MRO? Himayat. And we went to Honorable High Court, which was pleased to give us No, sir, you are from our trust land and affixed locks and affixed state government board stating that it is state government land. On 12/9/2025, High Court was pleased to grant order to us saying that the RDO and MRO must remove the locks and give possession back to us, which till date has not been complied with by the revenue officials. Using their government machinery to block Honorable High Court's order of 12/9/2025. 68 में रजिस्टर्ड सेल डीड की जमीन है और 1969 में इसको ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बनाने के बाद 2004 से उसके अंदर शादी खाना था। पहले EF गार्डन फंक्शन हॉल था, बाद में MA गार्डन फंक्शन हॉल था। उसके बाद अचानक जो है परसों 11 तारीख के दिन हैदराबाद कलेक्टर मैडम के ऑर्डर पे MRO हिमायत नगर RDO हैदराबाद आके जो है फोर्सफुल्ली हमारे फंक्शन हॉल को तोड़ के अंदर घुस के, अच्छा लॉक हमारा है लगा के हम रखे, उनके आने के बाद उसको तोड़ के अंदर घुस के अंदर के लोगों को बाहर कर रहे, करके वापस अपने लॉक डाल के विद इन 10 मिनट्स में भाग गए। बस हमारा बोलना यह है कि CM साहब से हाईली इंक्वायरी करे हैदराबाद कलेक्टर पे, RDO पे और हमारे हिमायत नगर MRO के ऊपर कि CBI इंक्वायरी करके इनके पीछे क्या है, बस हमको बात करें। ये हमारा बोलना है। उसके बाद 12 तारीख को हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट बोला कि इमीडिएट लॉक तोड़ो और इनको हैंड ओवर करो और जो भी है आप दोनों टाइटल सूट डालो, ये वो बोला। अगर उसके बाद अगर आपको जाना है तो उनको बोला कि प्रोसेस ऑफ लॉ से जाओ। अगर उन्होंने तब बोल रहे वो हमारे दिए तो हम ले लेते। उन्होंने तो क्या की बोल रहे 200 CR बोल के बोला। कैसा रहता 200 CR? 6000 गज का 200 CR रहता। 3 लाख हमारे के ऊपर ट्रस्ट चलाना है और उसके अंदर हमारे प्लानिंग है ट्रस्ट के जरिए से और अच्छे काम करने का। मैं आपको खुला बता रहा हूँ ना, 55,000 में आज आप बोलो 10,000 में उतना बड़ा हॉल कहाँ मिल रहा। और सिरा जो ट्रस्ट जो हूँ सुपरवाइज करता हूँ, आपके वालिद के लिए भी मैं सुपरवाइज था, मिस्टर महेश चंद साहब के पास पूरे जितनी चीजें मैं ही देखता था। आज आप है, आपके साथ भी मैं हूँ। मैं उस दिन MLC साहब बेग साहब भी आया था, अरफत साहब भी आया था, कुछ मदद के लिए करा था। उन्होंने भी आए, रिक्वेस्ट करे, बोले कि इनको पेपर दो। देखो भाई, जब पोजीशन कोई ले रहे लीगली तरीके से, इंक्रोचर्स अगर कोई है आपकी जमीन पे, आपको एक नोटिस देना पड़ता, भाई तुम इंक्रोचर से हमारी जमीन पर निकलो।
ये लाइन ग्रापर के जरिए कैसा घुसते भाई? मैं सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं बोला ना जाओ ले लो तोड़ दो घुस जाओ। सुप्रीम कोर्ट का वट बता देता हूं ऑर्डर में आपको, टाइटल सूट डाल लो। उन्होंने ये नहीं बोला गवर्नमेंट को जाके ले लो, जाके बोला फाउंडेशन को ले लो, नहीं, टाइटल सूट डालो। एक्शन तो कलेक्टर, कौन से कलेक्टर नाम बोलिए? कलेक्टर हैदराबाद से बोलिए, कलेक्टर हैदराबाद, आरडीओ हैदराबाद, एमआरओ हिमायतनगर और आरडीओ हैदराबाद। क्या चाह रहे हैं? हम इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन चाह रहे हैं, सख्त से सख्त एक्शन होना और हुकूमत इसके खिलाफ, सीएम साहब अगर थोड़ी हमारी मदद करके इनके ऊपर एक्शन करिए, सीबीआई इंक्वायरी करिए। आखिर क्या है भाई ये क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान में होते ऐसे काम? नेपाल है ये? अरे भाई इंडिया में हैदराबाद में ऐसे काम? दिन दिवाले, दिन में 12:30 बजे 150 पुलिस वाले औरतों को मार रहे हैं, अंदर आदमियों को मार रहे हैं। पूरे वीडियो रिकॉर्ड आप लोग, आपका मीडिया वाले, आप लोग को मालूम होगा किस तरीके से उसकी आलम था। हैदरगुड़ी की रोड पर ट्रैफिक जाम, 3 घंटे ट्रैफिक जाम पूरी रोड पे। ये तमाशे चल रहे हैं। आज भरोसा करके लोग कांग्रेस खाली बस लैंड ग्रैपिंग इनो खुद कर रहे। कोई लैंड ग्रैपर्स को नहीं निकालते इनो। कौन से लैंड ग्रैपर्स को निकाल रहे? जिसकी जमीन है जी लैंड, उन्होंने ले नहीं सकते जिंदगी में वो लैंड। जी कहने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जी लैंड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आबादी, गवर्नमेंट आबादी। उन्होंने भाई उनको यकीन था डिक्लेरेशन सूट डाले तो वो जमीन नहीं ले सकते, इसलिए बाई फोर्स अंदर घुस के लिए उन्होंने इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। और मैडम जो हमारे कलेक्टर मैडम है हैदराबाद, आप जल्द से जल्द हमारा लॉक खुलाइए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करिए। हमारा बोलना इतना ही है। आप लोग कैसा है भैया? में सेंड करिए इसको। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट बोले आपका वो गवर्नमेंट लैंड है बोल के बोले, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना सर। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट? वो पूछ रहे साहब। सेंडेड है सर। फिर आप क्यों नहीं बताए? बताए ना सर। पूरे डॉक्यूमेंट बताए तो उन्होंने देख के तो बोले ना, इमीडिएट इनको खोलो बोले, इनसे सवाल करे तुम्हारे पास क्या है बताओ, बता नहीं सके इन्हों। तो उन्होंने बोले आप एक काम करो, डिक्लेरेशन सूट डाल लो ना भाई, तो जमीन तुम्हारी है, जाओ बोले ना। ये केस 97 में ये लोग आए जी लैंड बोल के। जी लैंड बोलने के बाद हम उसका जवाब दिए, लोअर कोर्ट में हम गए थे, वहां पे हमारा केस जो है डिसमिस बाय डिफॉल्ट हुआ। फिर उसके बाद बाई फोर्स ये लोग 2004 में परसों जो हरकत करे, सेम 2004 में भी जब रेखा रानी बोल के कलेक्टर थी, डिप्यूटी कलेक्टर, बाई फोर्स अंदर घुसने की कोशिश करी। जब हम जमीन को बचाने के बाद हम हाईकोर्ट में जाकर रिट डाले, रिट पे इमीडिएट हमको रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद हम फंक्शन हॉल, जब से 2004 से फंक्शन हॉल चल रहा था, पहले फंक्शन हॉल ईएफ गार्डन के नाम से था, बाद में 2022 में एमए गार्डन फंक्शन हॉल बना। तो हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच का हमारा रिट था उसमें जजमेंट हमारे फेवर में आया, हमको वो लोग डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करी, डबल बेंच पे गई थी। डबल बेंच 17 साल के बाद 2022 में ये फैसला करी कि भाई उन्होंने फैसला ये करी कि ये गवर्नमेंट की जमीन नहीं बोली, उन्होंने ये बोली कि ये टाइटल सूट है, डिक्लेरेशन सूट आप लोग लोअर कोर्ट में डाल लो, लिहाजा मैं ये पहले के जजमेंट को खारिज करता हूँ। वो खारिज करने के बाद एक हमारी भी छोटी सी गलती हुई कि हम डिक्लेरेशन सूट नहीं डाल के हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, मगर सुप्रीम कोर्ट परसों 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सेम वर्ड बोला, डिक्लेरेशन सूट डालो। वो नहीं बोला कि गवर्नमेंट को बाई फोर्स जाके आप पोजीशन लो, नहीं बोला। तो ये लोग 9th के दिन ऑर्डर आया, हम डिक्लेरेशन सूट डालने के लिए 2-3 दिन का तो टाइम चाहिए था हमारे को। वो 9th के दिन ऑर्डर आया, 10th के दिन सुबह 11:30 बजे अटैक। हम उनको बोल रहे हैं भाई जब अब एमए गार्डन फंक्शन हॉल चल रहा, इंक्रोचर्स है तो इंक्रोचर्स को एक नोटिस दो, अंदर उनका सामान है, उनको कैसा खाली करते? नहीं, बाई फोर्स 150-200 पुलिस वालों को ला के अंदर जाके कुछ नहीं, लोगों को बाहर गेट को लॉक, और इतनी घबराहट में ला 10 मिनट में लॉक करके भागे, 10 मिनट सोल। उसके बाद हम फौरी दूसरे दिन हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाके सब चीजें बताए। तो सिंगल बेंच हमारे लक्ष्मण साहब जज साहब थे, ऑनरेबल जज साहब, इमीडिएट उनको बोले कि लॉक ओपन करो, एमए गार्डन को पोजीशन दो, इनको डिक्लेरेशन सूट डालने दो। उन्होंने ये बोल के बोले हमारे को आप लोग डिक्लेरेशन सूट डालो, 10 डेज का आपको टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिक्लेरेशन सूट डाल दिए, ओएस नंबर भी उसका आ गया। क्या है ओएस नंबर? इधर केस नंबर भी आ चुका है, मगर आज तक भी वो लोग लॉक खोलने का नाम नहीं है, ना कोई हरकत ले रहे। अब हुकूमत ऐसी रहेंगी, अब हम तो छोड़िए, मगर गरीबों का क्या आलम है भाई? फिर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को दिया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये लड़ने के लिए जा रहे हैं।
गरीब लोग जो ऐसा सता रहे हैं उन लोग क्या करेंगे? हम कलेक्टर करने जा रहे हैं तो कलेक्टर मिलने तैयार नहीं है हमारे से। एमआरओ करने का तो एमआरओ बोल रहे हैं मेरे पास मत आओ, हायर अथॉरिटी को जाओ। एमआरओ को हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम ये पेपर लो, नहीं मैं नहीं लेती, मेरे को हायर अथॉरिटी नहीं लेना बोले। आरडीओ करने जाते, आरडीओ ऑफिस से पढ़ा रहे, उनका भी वीडियो लिया। आरडीओ बोल दिया कि इनवर्ट में कोई एमए गार्डन का कोई पेपर नहीं लेना, इनवर्ट में लेने तक तैयार नहीं है वहां। इस तरीके से ये काम चल रहे हैं। हाईकोर्ट बोलने के बाद कलेक्टर नहीं सुन रहे, वो तो सोचो आप। तो ये हमारे को है भाई, जो चीज है सही तरीके से करो। ऑलरेडी हम सूट डाल दिए, सूट में हमारे साथ लड़ो, अगर तुम्हारी है तो तुम ले लो, बस इतना ही हमारा बोल रहे हैं। ये शादी खाने का खाना था ईएफ गार्डन फंक्शन हॉल, जो आपके वालिद साहब थे मिस्टर महेश चंद, जिसका इंतकाल हो गया। जब पहले ईएफ गार्डन उनसे जो है अनरजिस्टर्ड लीज पे चला रहा था, तो ईएफ गार्डन वाले हट गए बात। तो जब फिर उसके बाद एमए गार्डन फंक्शन हॉल उनके मरने के बाद आप लोगों से रजिस्टर्ड लीज डीड लिए 2022 में, रजिस्टर्ड लीज डीड लेके एमए गार्डन फंक्शन हॉल रनिंग करेगा। ये कलेक्टर क्या बोले थे आप? कलेक्टर मैडम तो मिलने तैयार नहीं है, कौन बस सा जाके तैयार नहीं है। क्यों? क्या है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर बता रहे ना, ये देखने तैयार नहीं हो हमारे पास। इन्वर्ट करे आपको? लास्ट में जब उन्होंने नहीं लिए तो हम बाई पोस्ट भेजे, इन्वर्ट में गए तो इन्वर्ट में बोल के रखे कि एमए गार्डन फंक्शन हॉल का कोई पेपर आया तो नहीं लेना। इन्वर्ट जैसा एमए गार्डन का देखा ले रहा ही, तो हम बाई पोस्ट भेजे। जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे खोले हुए हैं, हुकूमत बहुत सारे जरिए दिए, स्पीड पोस्ट से भेजे हम उनको। अच्छा